Hello students. So today we will be discussing the last topic from chapter number 2, that is periodic classification of elements. Okay. So in the last lecture we have seen the modern periodic table. ठीक है, modern periodic table कैसा है, उसमें कितने elements है, then what happens in a group, or how group is arranged, then how the periods are arranged and all. Okay, and उनका property क्या है, उनमें क्या क्या होता है, वो सब हम लोग ने in detail में देखा है, right? Okay, so today we are going to discuss the topic periodic trends in the modern periodic table. Okay, periodic trends in modern periodic table. Fine. Now what is trends, or what is periodic trends? Okay, now we have seen that there are groups and there are periods in modern periodic table. Okay, so if you see the group or if you see the period in modern periodic table, okay, the elements will have, or the properties of elements will have some similarities or regularities. Okay, जो एलिमेंट्स है, ओके, एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनके प्रॉपर्टी में कुछ एक रेगुलरिटी रहती है, या फिर जो ग्रुप में है या एक पीरियड में अगर आप देखोगे तो दे विल हैव सम रेगुलरिटी. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक ट्रेंड, और दैट इज कॉल्ड ट्रेंड. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रेंड. तो पीरियोडिक टेबल में क्या क्या ट्रेंड्स है वो हमको देखना है. सो इन योर सिलेबस, ओके, देयर आर ओनली 3 ट्रेंड्स और 3 properties that you have to see. The first is valency, second is atomic size, third is metallic and non-metallic character. Okay, so valency, atomic size, metallic and non-metallic character. ठीक है. Now valency का मतलब क्या है? Okay, you must have heard this term valence. Okay, valence आपने सुना है, ऑलरेडी सुना है, बराबर. मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने बताया था आपको. ठीक है, वैलेंस का मीनिंग क्या है? ओके, suppose this is which atom? Sodium. Okay, Na, sodium atom. Okay, sodium atom का ये क्या ड्रॉ किया है मैंने? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो ये सारा चीज़ जो है ना, मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. सो ये मैं सिर्फ रेफर कर रही हूँ हमारे न्यू टॉपिक के लिए. ठीक है. now this is sodium atom, right? Now sodium has got, what is the atomic number of sodium? 11. That means sodium has got 11 electrons, and this is the electronic configuration. Sodium का electronic configuration क्या है? 2, 8, 1. Okay, so 2 electrons in first shell, 8 electrons in the second shell, and remaining 1 electron in the last shell. So this last shell is also called valence shell. ये last shell या जो ये outermost shell है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? It is also called as valence shell. Okay, valence shell. And ये वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, या ये लास्ट शेल में या इस आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एज valence shell, and the electrons present in the outermost shell or in the valence shell are called as valence electrons. इतना समझा? ठीक है. सो वैलेंसी का मीनिंग क्या है, या वैलेंसी का डेफिनेशन क्या है? आपके पीरियोडिक ट्रेंड्स में फर्स्ट कौन सा टर्म है? वैलेंसी. सो वैलेंसी. Okay, so what do you mean by valency? Valency is nothing but the number of electrons present in the valence shell or outermost shell of atom. Okay, what is valency? I am repeating, valency is number of electrons present in the outermost shell. Okay, so if we consider सोडियम का वैलेंसी कितना है? सोडियम का वैलेंसी है 1, क्योंकि सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? There is only 1 electron, so its valency is 1. Okay, similarly if we consider suppose beryllium. ठीक है, if we consider beryllium का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is 2,2. करेक्ट. बेरिलियम के फर्स्ट शेल में there are 2 electrons, and second shell में which is its outermost shell or valence shell. Okay, so the valence shell has got 2 electrons. These electrons are called valence electrons, and the valency of beryllium is 2. Okay, now beryllium का valency 2 क्यों है? क्योंकि beryllium के valence shell में 2 electrons है. Okay, तो अभी कुछ समझ में आ गया आपको कि valency का मतलब क्या है? So what is valency? Valency is
number of electrons present in the outermost shell is called valency. Okay, so the definition is given over here. Okay, valency, the valency of an element is determined by the number of electrons present in the outermost shell of its atom. Okay, that is वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा उस नंबर को क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं. समझ में आ गया? सो दिस इज वैलेंसी. ठीक है. नेक्स्ट ट्रेंड इज एटॉमिक साइज. नेक्स्ट ट्रेंड क्या है? एटॉमिक साइज. ओके, ठीक है. अभी एटॉमिक साइज के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ क्या ड्रॉ किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटम्स ड्रॉ किए हैं. आई हैव ड्रॉन atom or the structure or the electronic configuration of hydrogen atom, then lithium, then sodium and then potassium. Okay, कंपेयर करो, चारों को भी कंपेयर करो. ओके, अगर मैं आपको पूछूंगी किसका एटॉमिक साइज ज़्यादा है, किसका एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा है या सबसे बड़ा है, ओके, तो आप क्या बोलोगे? मुझे हाइड्रोजन बोलोगे? नहीं. ओके, क्योंकि ऑब्जर्व करके ही आपको पता चल रहा है दैट पोटेशियम हैज़ गॉट bigger size than the other three. Okay, पोटेशियम का जो साइज है, एटॉमिक साइज है, that atomic size is larger than other 3 atom, correct, और other 3 elements. Okay, now ऐसा क्यों? ओके, ऑब्जर्व करके तो आपको पता चल रहा है कि एटॉमिक साइज किसका ज़्यादा होगा, बट एटॉमिक साइज का डेफिनेशन क्या है या एटॉमिक साइज डिसाइड कौन करेगा? सो एटॉमिक साइज विल बी डिसाइडेड बाय द रेडियस. Okay, the atomic size is decided by the radius of that atom. Okay, radius मतलब क्या? radius मतलब कहाँ से कहाँ तक? radius मतलब if you see this potassium, न्यूक्लियस से लेके ये बीच में क्या है? दिस इज नॉट डॉट, दिस इज व्हाट, ये जो बीच में है वो क्या है? न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट शेल तक जितना भी डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज रेडियस, or it is called atomic radius. Okay, so the distance between nucleus and the outermost shell is atomic radius. Okay, if atomic radius is larger, then the atomic size of that atom is larger. Okay, if the atomic radius is smaller, then atomic size is smaller. So if you see this hydrogen atom ये nucleus है और ये क्या है? उसका आउटरमोस्ट शेल. हाइड्रोजन को एक ही शेल है तो वही उसका आउटरमोस्ट शेल, बराबर. सो ये देखो, ये रेडियस कितना है? बहुत कम है. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पोटेशियम के लिए देयर आर 1, 2, 3 and 4 शेल्स. सो डेफिनेटली पोटेशियम का जो रेडियस है या उसका जो साइज है वो डेफिनेटली बड़ा रहेगा. समझ में आ गया? ओके, देन इफ यू सी सोडियम, तो सोडियम का जो एटॉमिक साइज है इट इज lesser than potassium. Okay, because sodium has got only 3 shells. Okay, so this is all about atomic size. So let us see what is atomic size given in your book. Okay, the size of an atom is indicated by its radius. Atomic radius is the distance between the nucleus of the atom and the outermost shell. Understood? So it is not, the radius is distance between nucleus and the outermost shell. Okay, now the atomic radius is expressed in unit picometer. Okay, एटॉमिक रेडियस ना किस में मेजर करते हैं या उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं? ठीक है. ओके, सपोज आपको कहीं पे जाना है और आपको डिस्टेंस चाहिए कि वहाँ जाने के लिए कितना टाइम लगेगा या कितना डिस्टेंस है मेरे घर से वो पर्टिकुलर प्लेस तक, कितना डिस्टेंस है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर्स, है ना. सो वैसे ये जो डिस्टेंस मैंने बताया या ये जो डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, विच डिस्टेंस इज दिस? दिस इज एटॉमिक रेडियस. ओके, सो दिस एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन पिकोमीटर. ओके, इट इज मेजर्ड इन PM, that is picometer. Okay, picometer. Now meter सबको पता है, 1 मीटर 2 मीटर 4 किलोमीटर्स, बट व्हाट इज पिको? सो पिको का मतलब क्या है पता है? पिको इज 10⁻⁻12. ओके, पिको इज 10⁻⁻12. सो जस्ट इमेजिन पिको कितना छोटा है. पिको इज वेरी लेस. 10⁻⁻12 मतलब कितना हो गया? 0.00000, ऐसे 12 टाइम्स 0 आएंगे तब जाके वो बनेगा पिको. सो पिको इज वेरी लेस. दैट मीन्स द रेडियस और द साइज ऑफ एटम इज
एक्सट्रीमली स्मॉल, ओके, मतलब एटम का साइज इतना छोटा रहता है कि हमको एटम्स दिखते भी नहीं है, वी कैनॉट सी एटम्स, right, because their size is very less and it is in the range of picometer, and pico is 10 raised to minus 12. Okay, hope you understood. You already know what is 10 raised to minus 12 or 10 raised to minus 1 or 2. बराबर पता है सबको. 10 raised to minus 1 मतलब क्या? 0.1. 10 raised to minus 2 मतलब क्या? 0.01. ओके, तो ये अगर इतना छोटा आपको लगता है तो जस्ट इमेजिन 10 raised to minus 12 कितना छोटा हो गया, बहुत, 0.0000000. ओके, ऐसे 12 टाइम्स जीरो आएंगे फिर वो बनेगा पिकोमीटर. ओके, सो द साइज ऑफ एटम इज वेरी लेस. ओके, सो कुछ एलिमेंट्स का यहाँ पे एटॉमिक रेडियस दिया है. ओके, एलिमेंट क्या है देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस इज 66 पिकोमीटर, बेरिल बोरॉन का है 88, कार्बन का है 77, ओके, एंड सो ऑन. लिथियम का है 152. ओके, सो ये 66 क्या है? 66 पिकोमीटर, 77 पिकोमीटर, 152 पिकोमीटर. ओके, सो इट इज़ नथिंग बट 152 पिको मतलब 152 इंटू. ओके, इफ वी टॉक अबाउट लिथियम, लिथियम का एटॉमिक रेडियस कितना है? 152 पिकोमीटर मतलब 152 इंटू 10 raised to minus 12 मीटर. समझ में आ गया? ओके, सो पिको इज 10 raised to minus 12. ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो क्या बताया है, यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया है. द एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये मैंने आपको कब एक्सप्लेन किया है? आई थिंक लास्ट लेक्चर में या शायद लास्ट लेक्चर में जब मैंने पीरियड एक्सप्लेन किया है तब मैंने ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ओके, वाई द एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, सो यू नीड टू सी दैट लेक्चर. ओके, वेरी नाइसली, वेरी केयरफुली, बिकॉज तभी भी मैंने जब एक्सप्लेन किया मैंने बताया है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ओके, पूछते हैं एग्जाम में वाई एटॉमिक रेडियस. ओके, या see sometimes they will say why atomic radius, sometimes they will say atomic size. atomic size और atomic radius सेम है. क्यों? क्योंकि atomic size कौन डिसाइड करता है? रेडियस. रेडियस ज़्यादा तो एटम का साइज ज़्यादा, रेडियस कम तो एटम का साइज कम. ओके, सो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. ओके, सो दोनों में से कुछ भी पूछा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. सो एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड. ओके, सो दिस इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड वेरी वेल. ओके, अगर आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा है तो आपको समझ में आएगा. ओके, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट अगेन बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट आवर टाइम. ठीक है, देन कमिंग टू नेक्स्ट पैसेज. ओके, यहाँ पे क्या दिया है देखो, you will find that while going down the group atomic size goes on increasing. This also I have explained जब मैंने आपको ग्रुप्स एक्सप्लेन किया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. ओके, दिस इज आई थिंक द लास्ट लेक्चर. ओके, सो जब हम लोग ग्रुप में मतलब while going down in a group, जब हम लोग ग्रुप में ऐसे नीचे नीचे आते हैं, दिस इज अ ग्रुप, राइट, दिस इज द ग्रुप एंड दिस इज पीरियड. सो ग्रुप में जब हम लोग नीचे नीचे आते हैं तब एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है. और जब हम लोग पीरियड में व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, द एटॉमिक साइज decreases, and when we come down atomic size increases. The reason is explained very well. Please see the last 2 lectures carefully. ठीक है, now नेक्स्ट ट्रेंड. सो 2 ट्रेंड हो गए, वैलेंसी एंड एटॉमिक साइज. द थर्ड ट्रेंड एंड द लास्ट टॉपिक इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. ओके, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. ठीक है, अभी ये अगर आप रीड करोगे ना, ओके, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर के लिए इफ़ यू रीड दिस 2 पेजेस, ओके, आपको कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आएगा. ये पूरा थ्योरी दिया हुआ है और आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. ओके, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट. ओके, आई विल ट्राई माई मैक्सिमम टू एक्सप्लेन दिस. ये थोड़ा सा आपको शायद ट्रिकी या टफ लग सकता है, तो ध्यान दो अच्छे से. ठीक है, नाउ मैं वहाँ से नहीं रीड कर रही हूँ. ओके, मैं आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ. ठीक है, नाउ जब मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन किया, ओके, दैट टाइम व्हाट आई टोल्ड, okay, there are so many elements, that means there are total 118 elements in the modern periodic table. Okay, some of them are metals, some of them are non metals, right, and some of them are what? Metalloids, right?
इसमें मेटल्स है, नॉन मेटल्स है एंड मेटलॉइड्स है. ओके, मैंने आपको बताया था कि मेटल्स कहाँ पे है एंड नॉन मेटल्स कहाँ पे है. कैन यू टेल मी वेयर आर मेटल्स इन दिस modern periodic table and where are non-metals? Exactly. Okay, in this modern periodic table, this is a zigzag line given over here. Okay, the elements present on the left side of this zigzag line are metals. Okay, ओके ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था. जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है दे ऑल आर metals. So these elements are metals and the elements present to the right side of this zigzag line are non-metals. ये सारे कौन है? ये सारे non-metals है. And the elements present on the zigzag line are what? Metalloids. Okay, जो एलिमेंट जिगजैग लाइन के पास में है. ओके, सिलिकॉन, जर्मेनियम. ओके, ये सारे जो भी एलिमेंट्स है ना, ये सारे एलिमेंट्स क्या है? मेटलॉइड्स है. सो यहाँ पे मेटल्स, ये साइड नॉन मेटल्स एंड जो लाइन पे है वो सारे मेटलॉइड्स. ओके, इतना क्लियर हो गया? ठीक है. ओके, ठीक है. अभी एक थोड़ा ना ध्यान से जो मैं बता रही हूँ, ओके, वो ध्यान से सुनो. ठीक है. ओके, metals and non-metals. Okay, metals form cation. Okay, metals क्या फॉर्म करते हैं? cation फॉर्म करते हैं. ओके, दे फॉर्म cation. एंड नॉन मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं पता है? नॉन मेटल्स फॉर्म करते हैं anion. Okay, so don't call this as cation. This is not cation and this is not anion. Okay, this is cation, this is anion. Okay, so वो क्या है, कैसे फॉर्म करते हैं, ये शायद आपको प्रीवियस स्टैंडर्ड में हुआ है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है. देन metals have electropositivity. Okay, metals have electropositivity, non-metals have electronegativity. Okay, okay. So ये एक मैंने चार्ट बनाया है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या है. ओके, metals form cation and they have electropositivity. Non-metals form anion and they have electronegativity. So क्या है क्या नहीं मैं आपको बताती हूँ. ओके, पहले वी विल टॉक अबाउट मेटल्स. ओके, when I'm explaining this metals, anion, cation and all, okay, I will take one example. Okay, so मुझे बताओ, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक मेटल हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, पीरियोडिक टेबल से. अभी पीरियोडिक टेबल में मेटल्स को कहाँ पे ढूंढेंगे? Where are they? They are towards the right side. Correct? वो सॉरी लेफ्ट साइड. ओके, सो जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में ये सारे मेटल्स हैं. अभी इसमें से कोई एक मेटल सिलेक्ट करो. लेट अस सिलेक्ट सोडियम. ठीक है, सोडियम को सिलेक्ट करते हैं. सो आई हैव सिलेक्टेड सोडियम. ओके, क्लियर? फाइन. ओके, नाउ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अभी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है. देखो. ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11. ओके, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,1. ओके, ये लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ड्रॉ किए हैं. सो होपफुली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रॉ करना है ये आपको फटाफट अभी आना चाहिए. ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सोडियम हैज़ गॉट 3 शेल्स. ओके, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. अभी मेरी बात ध्यान से सुनो. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एवरी एटम और एवरी एलिमेंट वांट्स टू बिकम स्टेबल. ठीक है, सबको लाइफ में स्टेबल बनना है, किसी को भी अनस्टेबल नहीं रहना है. बराबर. सो सोडियम एटम को भी ना स्टेबल होना है. ओके, नाउ स्टेबल होने के लिए, एटम को स्टेबल होने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि द क्राइटेरिया ऑफ एनी एटम टू गेट स्टेबल इज इट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. ओके, क्या बताया मैंने? इट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. मैंने देखो लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था ऑक्टेट का. वेयर इज इट? समवेयर हियर, आई डोंट नो. कहीं पे तो मैंने आपको बताया था ऑक्टेट का कंसेप्ट. ओके, हाँ, यहाँ पे बताया था. देखो,
ऑक्टेट का कंसेप्ट मैंने बताया था, ठीक है. सो all the metal wants to complete their octet. And what do you mean by octet? Octet means 8. तो हर एक एटम को उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ही वो स्टेबल हो गए, अदरवाइज वो लोग हमेशा अनस्टेबल रहने वाले हैं, ठीक है. नाउ कॉन्सेंट्रेट और ऑब्जर्व दिस सोडियम एटम, ठीक है. लेट अस टॉक अबाउट सोडियम एटम ओनली राइट नाउ, ओके. अभी सोडियम एटम अगर हम लोग देखेंगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. कितना इलेक्ट्रॉन है? देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब क्या हो गया कि इफ दिस सोडियम एटम वांट्स टू बी स्टेबल, ओके, और इट वांट्स टू बिकम स्टेबल, इट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. बट फिलहाल उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? उसको और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? इट नीड्स मोर 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सोडियम नीड्स मोर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. एक उसके पास ऑलरेडी है और उसको 7 की जरूरत है, बराबर. अभी सोडियम क्या करेगा? दूसरे एलिमेंट के पास जाएगा, किसी के पास भी, पोटेशियम या फिर लिथियम, किसी के पास भी जाएगा और क्या बोलेगा? प्लीज़ मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दो, क्योंकि मुझे लाइफ में स्टेबल बनना है. अभी वो दूसरे एलिमेंट्स क्या बोलेंगे? वो लोग देंगे क्या उसको, सोडियम को? विल दे गिव 7 एलिमेंट्स टू सोडियम? नो, बराबर, क्योंकि 7 बहुत ज़्यादा है. कोई भी सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देने वाला, ओके. मैक्सिमम दे कैन गिव 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, ओके. सो अभी सोडियम क्या सोच रहा है कि 7 इलेक्ट्रॉन तो मुझे कोई भी नहीं देने वाला है, तो अभी मैं क्या करूँ स्टेबल होने के लिए, क्योंकि उसको स्टेबल होना है, ओके. अभी स्टेबल होने के लिए इट कैन टेक इलेक्ट्रॉन और इट कैन गिव इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन. मतलब उसको कुछ भी करके स्टेबल होना है. आइदर इट विल टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एलिमेंट्स और इट विल डोनेट और गिव इलेक्ट्रॉन टू अदर एलिमेंट. सो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. सो व्हाट सोडियम विल डू? Rather than taking 7 electrons, it will donate its 1 electron, okay. जब ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये जो शेल है ये तो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि ये शेल यहाँ पे क्यों है? इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखने के लिए हम लोग ने शेल ड्रॉ किया है. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा, अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये शेल तो नहीं रहेगा. तो कौन सा शेल रहेगा? सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड शेल. And second shell में there are already 8 electrons, so sodium will become stable. आपको कुछ समझ में आ रहा है? ओके, मैंने क्या बताया है? What I am trying to tell you is every atom or every element wants to become stable. Okay, when they will become stable? Only when they will have 8 electron in their outermost shell. Okay, to become stable, the atom can either accept or take electrons from other elements, or they can donate or give their electrons to other elements and they will become stable. So sodium needs 7 extra electrons to complete its octet, but it is better to donate 1 electron rather than taking 7 electrons. So sodium will donate 1 electron to some other atom, okay, and सोडियम विल बिकम स्टेबल बिकॉज जब वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ये वाला जो आउटरमोस्ट शेल है वो डिसअपियर होगा और सिर्फ ये 2 शेल्स बचेंगे और सेकेंड शेल विल बिकम इट्स आउटरमोस्ट शेल. जब ये शेल चला जाएगा, सेकेंड शेल विल बिकम इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड सेकेंड शेल में ऑलरेडी देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो क्या होगा? सोडियम विल बिकम स्टेबल. समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ? आपको समझ में आ गया, ठीक है. सो जब सोडियम क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा. व्हेन इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, ओके, 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल बिकम stable, okay. Whenever sodium gives out 1 electron, sodium becomes Na plus, okay. कब Na plus बनेगा? when it will donate electron. कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, okay. when sodium donate 1 electron, it will become Na plus. मतलब जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तब वो आयन बनता है. तब वो क्या बनता है? दैट एटम बिकम्स आयन, ओके. बिफोर इट वाज एटम. when it loses electrons or when it donates electrons, it becomes ion.
and that ion is called as cation. Okay, so whenever sodium gives out electron it becomes cation. Okay, so metals जब भी इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्योंकि सोडियम मेटल है, ठीक है, सो मेटल जब भी इलेक्ट्रॉन देते हैं वो बनते हैं कैटायन. समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट, मेटल्स फॉर्म्स कैटायन. ठीक है, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, या फिर मैंने यहाँ पे प्लस क्यू ड्रॉ किया है. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब क्या, देखो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 1 2, देन दिस 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस 1, दैट मीन्स टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स आर वॉट, नेगेटिवली चार्ज. अभी सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, ओके, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो सोडियम थोड़ा सा पॉजिटिव बनेगा. पहले उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे या 11 नेगेटिव चार्ज था, अभी एक किसी को दे दिया तो सोडियम थोड़ा पॉजिटिव बन गया. यस, सो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, बिकॉज sodium or the metals have tendency to donate electron. ध्यान में रखो, metals have tendency to donate electron. Okay, metal always donate electron. वो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डोनेट करते हैं. क्यों डोनेट करते हैं, क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन्स रहता है. ओके, सो दे ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन. ये आपको समझ में आ गया इतना. एंड बिकॉज दे डोनेट इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म कैटायन एंड दे हैव द टेंडेंसी ऑफ बिकमिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो दे आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. समझ में आ गया. सो मेटल्स फॉर्म्स कैटायन बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड they are electropositive, so it is called electropositivity. Okay, hope this much is clear. ठीक है, let us go towards non-metals. Okay, non-metals form anion and it is called electronegativity. अब क्यों, कैसे, let us see. Okay, अभी मुझे बोलो एक एग्जाम्पल लेना है नॉन मेटल्स का, तो किसका एग्जाम्पल लेते हैं. देखो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है. अभी नॉन मेटल कहाँ पे है, राइट साइड. ओके, zigzag लाइन के राइट साइड में नॉन मेटल्स है. ओके, सो फ्रॉम हियर आई विल सिलेक्ट क्लोरीन. चलो लेट अस कंसिडर क्लोरीन. ओके, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, बराबर. सो वी विल कंसिडर नॉन मेटल्स में किसको, यहाँ पे मैं लिखती हूँ अंडर मेटल्स. मेटल्स में यहाँ पे किसको कंसिडर किया है, सोडियम को. नॉन मेटल्स के लिए मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ क्लोरीन का. ठीक है, नॉट नेसेसरी कि इन दोनों को ही लेना है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो. ठीक है, सो ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. ठीक है, सो नॉन मेटल्स हम लोग लेते हैं, किसको कंसिडर करते हैं, क्लोरीन को. ठीक है, नाउ क्लोरीन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, 70. बिकॉज आई थिंक सोडियम ड्रॉ किया है, क्लोरीन हमारे पास ड्रॉ किया हुआ नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 70. ओके, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 70, सॉरी उसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 17, बराबर. ओके, सो 17 अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8, 7. ओके, सो ये आपको अभी फटाफट आना चाहिए. मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर, दोनों लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करके बताए हैं, तो अभी आपको ये फटाफट आना चाहिए. 2, 8, 7. कैलकुलेट करो 17 है कि नहीं. 2 + 8 इज 10, 10 + 7 इज 17. समझ में आ गया. ठीक है, दैट मीन्स क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है. क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अभी क्लोरीन को भी क्या बनना है, स्टेबल बनना है, बराबर. क्लोरीन वॉन्ट्स टू बिकम स्टेबल. ओके, एंड स्टेबल बनने का क्राइटेरिया क्या है, द क्राइटेरिया इज इट शुड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. दैट मीन्स देयर शुड बी 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. ओके, नाउ क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, वहां पे सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स कम है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स इज लेस. इलेक्ट्रॉन, ओके, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज लेस, उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा. ओके, rather than donating 7 electrons, chlorine will accept 1 electron and it will complete 1 electron accept करने के बाद उसके outermost shell में 8 electrons complete हो जाएंगे and chlorine will become stable. Okay, so chlorine will accept 1 electron. ओके, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से किसी और से वो क्या करेगा,
खरीदेगा या उसको एक्सेप्ट करेगा एंड उसके आउटरमोस्ट शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अभी मुझे सोच के बताओ कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ओके, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब क्लोरीन क्या हो रहा है पता है, नेगेटिव हो रहा है। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड क्लोरीन इज एक्सेप्टिंग वन मोर नेगेटिव चार्ज। ओके, ऑलरेडी जितने उसके पास है उससे ज़्यादा एक वो नेगेटिव चार्ज को ले रहा है। दैट मीन्स क्लोरीन इज गोइंग टू बिकम Cl नेगेटिव। जैसे सोडियम यहाँ पे पॉजिटिव बना, क्यों? बिकॉज सोडियम इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई क्लोरीन विल बिकम Cl नेगेटिव। ओके, सो सोडियम डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, Na पॉजिटिव बनता है। क्लोरीन जो है इट एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम्स Cl नेगेटिव। ओके, मतलब क्लोरीन नेगेटिव बनता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एनायन। ओके ओके, Cl नेगेटिव मतलब क्या? अभी हम लोग इसको सिर्फ Cl नहीं लिख सकते क्योंकि Cl में सिर्फ 17 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, क्लोरीन स्टेबल होने के लिए इट इज एक्सेप्टिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम एटम, ओके, और सम अदर एलिमेंट एंड इट इज बिकमिंग Cl नेगेटिव, ओके, विच इज कॉल्ड एनायन। सो नाउ क्लोरीन इज फॉर्मिंग anion by accepting electron from some other element. Okay, and chlorine is now called electronegative or it has electronegativity. Why electronegativity? क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब जितना उसके पास है उससे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को लेके आ रहा है उसके पास, सो वो ज़्यादा नेगेटिव बन रहा है, सो इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, so this is all about the non-metal. So chlorine is non-metal, sodium is a metal. So metal का tendency क्या होता है, to donate electron, and non-metal का tendency क्या होता है, to accept electron and become stable. Metals will donate electron and they will become stable. So non-metals accept electrons and they form anion and they have property electronegativity. Okay, they have electronegativity and metals have electropositivity. समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया सबको? अभी मुझे इधर से ही थोड़ा देख के बताओ आप लोग कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, तो सोडियम किसको देगा पता है क्या, इलेक्ट्रॉन? सोडियम विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एंड क्लोरीन विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। समझ में आ गया? ओके, what if I talk about magnesium? ओके, अगर मैं मैग्नीशियम के बारे में बात कर रही हूँ तो मैग्नीशियम क्या है, हमारा मेटल है। सिर्फ मैं मैग्नीशियम एक बार आपको फटाफट बताती हूँ, मेटल है। ठीक है, जैसे मैंने सोडियम का बताया, मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम का कितना है, एटॉमिक नंबर इज 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12, करेक्ट। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा, 2,8,2. Okay, 2,8,2. Now magnesium has got 2 electron in its outermost shell. So rather than taking कितना टोटल कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, यहाँ पे 8 आने के लिए कितना चाहिए उसको, 6. So rather than taking 6 electrons, it will donate 2 electrons and then it will become stable. ओके, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद उसके पास बचेगा 2,8 और 8 मतलब आउटरमोस्ट शेल में 8 आ गया, मतलब वो स्टेबल हो गया। सो मैग्नीशियम विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है आपको? ओके, और जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तब ओके वो क्या बनता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ओके, सो अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, it will become electropositive. Magnesium will donate 2 electrons, it will become more electropositive. Aluminium will donate 3 electrons, so it will become more electropositive. So as you go from left to right, electropositivity increases and electronegativity decreases. समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ओके, सी हियर। ओके, सो ये जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ओके, ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, ये पूरा
यहाँ पे दिया हुआ है इन दिस पेज नंबर 26, okay, पेज नंबर 26 and पेज नंबर 27. Okay, so after listening to this lecture or to this explanation, please go through these two pages 26 and 27. ठीक है, ओके और फिर भी अगर आपको डाउट है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग मुझे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ये वाला एक आपका पीरियोडिक टेबल, ओके। एंड पीरियोडिक टेबल में इन्होंने कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है और कुछ बताया है। सो व्हाट दे आर टॉकिंग और व्हाट दे वांट्स टू से, लेट अस सी, ओके। ये एरो उन्होंने ड्रॉ किया, ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है पता है? दिस इज period. So when you go from left to right, when you go from left to right in a period, okay, atomic radius decreases. डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस मतलब एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है मैंने एक्सप्लेन किया है लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, अच्छे से देखो, ठीक है। देन एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ओके। बराबर अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट में जाते हैं तब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। क्योंकि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट में जाते हैं, लेफ्ट में कौन है ज़्यादा? मेटल्स है, राइट में कौन है? यहाँ पे नॉन मेटल्स है। सो व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वी आर गोइंग फ्रॉम मेटल्स टूवर्ड्स नॉन मेटल्स, ओके। व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, मेटल से हम लोग किसके पास जाते हैं? नॉन मेटल्स के पास जाते हैं। नॉन मेटल्स के पास क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटल्स के पास क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। सो as we go from left to right, electropositivity decreases, electronegativity increases, क्योंकि यहाँ पे मेटल्स है, स्लोली वो किसके पास जा रहे हैं? नॉन मेटल्स के पास, ओके। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो मेटल्स के पास है वो यहाँ पे स्लोली डिक्रीज होगा और जैसे ही नॉन मेटल्स आएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यहाँ पे इंक्रीज होगा, ओके। सो वही एक्सप्लेन किया है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। देन ये एरो का मीनिंग क्या है? एज वी गो फ्रॉम अप टू डाउन, ओके, जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तब क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ऑलरेडी एक्सप्लेन, प्लीज गो थ्रू इट, ओके। देन सेकेंड है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटल्स, ओके। सो जब हम लोग नीचे आते हैं, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होता है, बराबर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुआ मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो गया? सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुआ मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगा। एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स आर डिक्रीजिंग, मेटालिक कैरेक्टर्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है, ओके। सो this is all about the metallic and non-metallic character, ठीक है। So with this your chapter is over, okay। So इसमें जो भी आपको डाउट्स है, जो भी नहीं समझ में आ गया है, प्लीज़ मुझे डाउट्स पूछो आप लोग, ठीक है।